اصلاحی بیانات، فقہی معلومات اور مستند دینی تعلیمات کے لیے مولانا احمد مدنی عباسی چینل سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ علی کل حال، والصلاة والسلام علی صاحب الجود والکرم والجمال وعلى آلہ واصحابہ الذین اولی الفضل والکمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھیں۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ان آیات میں اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا، اور اس مقصد کو اللہ نے کن افراد کے ذریعے پورا کرانا ہے یہ بیان فرمایا۔ یاد رکھیے، ہماری زندگی میں دین کی بڑی اہمیت ہے۔ جب لفظ دین کا بولا جاتا ہے تو دین کا معنی ظاہری اعمال نہیں، دین کا مطلب اور مفہوم روش، طریقہ، دستور زندگی، نظام زندگی ہے، اور اس کی ہماری زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں، یہ اعضاء جسمانیہ شکل میں بھی مختلف ہیں، مزاج میں بھی مختلف ہیں۔ مثلا ہمارے ہاتھوں کی جو شکل ہے وہ پیروں کی نہیں، جو آنکھوں کی شکل ہے وہ زبان کی نہیں، جو زبان کی ہے وہ ناک کی نہیں، جو کانوں کی ہے وہ سر کی نہیں۔ یہ اعضاء جسمانیہ شکل و صورت میں مختلف ہیں، مزاج میں بھی مختلف ہیں، اپنے فنکشن میں بھی مختلف ہیں، صلاحیتوں میں بھی مختلف ہیں۔ جو فنکشن اور صلاحیت ہاتھوں کی ہے وہ پیروں کی نہیں، جو زبان کی ہے وہ ناک کی نہیں، جو کانوں کی ہے وہ آنکھوں کی نہیں۔ تو یہ مختلف الصورت اور مختلف المزاج جو اعضاء جسمانیہ ہیں، یہ اس طرح جڑے ہوئے ہیں، متحد ہیں، یکجان ہیں کہ اگر کسی ایک کو تکلیف ہو تو تمام اعضاء بیک وقت حرکت میں آتے ہیں۔ مثلا اگر سر میں درد ہو جائے تو پاؤں ہسپتال کی طرف چل کے جاتے ہیں، ہاتھ دوائی لیتے ہیں، منہ دوائی کو نگلتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سر میں درد ہو تو پیر کہیں کہ مسئلہ تو سر کا ہے، میں چل کے نہیں جاتا، ہاتھ کہیں کہ مسئلہ تو سر کا ہے، میں دوائی نہیں لیتا، منہ کہے کہ مسئلہ تو سر کو ہے، میں دوائی کھاتا نہیں۔ یہ یکجان ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ ان مختلف صورت، مختلف المزاج اعضاء جسمانیہ کو جوڑنے والی چیز کیا ہے؟
تو اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ وہ روح ہے. کیا ہے جی؟ روح. بعین ہی اسی طرح ایک گھرانے میں، ایک معاشرے میں، ایک قوم میں، حتیٰ کہ ایک امت میں رہنے والے جو افراد ہوتے ہیں وہ شکل میں بھی مختلف ہوتے ہیں، مزاج اور صلاحیتوں میں بھی مختلف ہوتے ہیں. جس طرح جسم کے مختلف شکل اور مختلف مزاج اعضاء کو جوڑنے والی چیز کا نام روح ہے، بعین ہی اسی طرح ایک گھرانے میں رہنے والے مختلف الصورت مختلف المزاج افراد، ایک قوم میں رہنے والے مختلف الصورت مختلف المزاج افراد، حتیٰ کہ ایک امت میں رہنے والے مختلف الصورت اور مختلف المزاج افراد کو جوڑ کر یکجان کرنے والی چیز وہ اللہ کا دین ہے. اگر یہ دین فرد سے نکال لیا جائے، گھرانے سے نکال لیا جائے، معاشرے سے نکال لیا جائے، امت سے نکال لیا جائے، یاد رکھیے دین سے مراد نظام زندگی ہے. جب یہ دین نکلے گا، اگر گھر سے نکل گیا تو گھر کے افراد کو ایک دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی. جیسے روح جسم سے نکل جائے تو اعضائے جسمانیہ میں سے ایک کو دوسرے کی پرواہ نہیں ہوتی، اسی طرح اگر دین گھرانے سے نکل جائے تو اولاد کو ماں باپ کی پرواہ نہیں، ماں باپ کو اولاد کی پرواہ نہیں، بیوی کو شوہر کا احساس نہیں، شوہر کو بیوی کا احساس نہیں. یہی دین آپ امت سے نکال دیں تو ایک ہی امت کے افراد کا غم دوسری امت کو کرب میں مبتلا نہیں کرے گا. فلسطین میں بچے ذبح ہوں گے، دیگر مسلم ممالک کے حکمران آرام سے نیند میں مزے میں سوئے رہیں گے. وجہ کیا ہے؟ کہ دین جو بطور نظام زندگی کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے وہ امت سے بطور نظام کے نکل چکا ہے. اگر یہ دین بطور نظام کے امت کے پاس ہوتا تو امت کے کسی ایک فرد کو تکلیف ہوتی تو تمام افراد تڑپ جاتے اور اس کی تکلیف کا مداوع کرتے، اس کا حل نکالتے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں پر لفظ بولا ہے، دین کا لفظ بولا ہے، اور حضور کی بعثت کا مقصد اولی جو اللہ نے بیان فرمایا سورۃ الفتح کی اس آیت میں، اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. لوگو، اللہ وہ ذات ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ اللہ اس دین حق کو، اس نظام حق کو، اس نظام اسلام کو تمام نظاموں پہ غالب فرما دے، تمام نظام اس کے ماتحت آ جائیں. اب یہ دین اسلام کا جو غلبہ ہے، دین حق کے نظام کا جو غلبہ ہے، یہ حضور کی بعثت کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا. اور اسی مقام پہ نہیں، 4 مقامات پر بعین ہی یہی آیت قرآن مجید میں ہے جس میں اللہ رب العزت نے حضور کا مقصد اتنی تاکید سے بیان کیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. علماء طلباء ہوتے ہیں مجمع میں، مشائخ کا مجمع ہے، آپ جانتے ہیں یہ حسر ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے حضور کو بھیجا ہی اسی کام کے لیے ہے کہ وہ اپنے نظام کو تمام نظاموں پہ غالب کر دے. اب یہ تمام نظاموں پہ جب غلبہ ہوگا تو اس غلبے کو لانے والے لوگ کون ہوں گے؟ اللہ نے آگے کی آیات میں ان لوگوں کو بیان کیا. فرمایا اس نظام اسلام کے غلبے کو نافذ کرنے والا جو پہلا فرد ہے اس کے بارے میں فرمایا محمد رسول اللہ، وہ میرا رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور کی پوری زندگی غلبہ اسلام سے عبارت ہے. حضور نے پوری زندگی محنت شاقہ فرمائی کہ اللہ کے دین کا نظام تمام نظاموں پہ غالب آ جائے. حضور نے اس کی ابتدا فرمائی. میں آپ کو حضور کی محنت کی ایک تھوڑی سی جھلک دینا چاہتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے اس کا دورانیہ 9 سال 9 مہینے 10 دن بنتا ہے. 10 سال تو ہم کہہ دیتے ہیں، کسر پوری کر دیتے ہیں، ورنہ ایک حقیقی جو ہے زندگی اگر گنی جائے ہجرت کے دن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک تو یہ 9 سال 9 مہینے 10 دن بنتے ہیں. ان 9 سال 9 مہینے 10 دنوں میں
हुजूर करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 गज़वात लड़े हैं, 47 सराया लड़े हैं। गज़वा उस लड़ाई को कहा जाता है जिसमें हुजूर बनफ्से नफीस तशरीफ ले गए, और सरिया वो लड़ाई होती है जिसमें हुजूर खुद तो नहीं गए लेकिन सहाबा की जमात को भेजा। यानी 27 गज़वात, 47 सराया कुल मिला लिया जाए तो ये 74 मुहिम्मात बनती हैं। हुजूर की 74 मुहिम्मात 9 साल 9 माह 10 दिन में इसकी औसत निकाली जाए तो हर 48 दिन में हुजूर की एक मुहिम बनती है। कितने दिनों में जी? 48 दिनों में, हर 48 दिनों में हुजूर की एक मुहिम बनती है। और मुहिम मेरे और आपके मुहिम जैसी नहीं कि कहीं बयान के लिए चले गए, लोगों ने अकीदत दिखाई है, फूल निछावर किए हैं, हदिये और नजराने मिले हैं। नहीं, ये मुहिम कैसी है? युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून व युक्तलून। ये ऐसी मुहिम है जिसमें लड़ना है, जिसमें मारना है या मरना है, जिसमें जान देनी है या जान लेनी है। हर 48 दिन में ये मुहिम है हुजूर। क्या हुजूर का काम सिर्फ यही मुहिम्मात था? हुजूर की कोई और मसरूफियत न थी? ना, हुजूर की मसरूफियात तो इतनी थी कि अगर उनमें से एक मसरूफियत भी आज के किसी जमाने के आदमी को मिल जाए तो वो और किसी काम का रहता नहीं। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसरूफियात का अंदाजा लगाइए कि हुजूर मस्जिद नबवी के इमाम है, 5 वक्ती इमाम। आज मदारिस में, इदारों में 5 वक्ती इमाम मुश्किल से होते हैं। जो 5 वक्ती इमाम बन जाए वो किसी काम का रहता नहीं, वो इतना मसरूफ होता है। हमारे यहां तो तकसीम होती है, जहरी इमाम और है नमाजों का, सिरी नमाजों का इमाम और है, लेकिन हुजूर मस्जिद नबवी के 5 वक्ती इमाम है। और फिर हमारे यहां जो इमाम होता है वो खतीब नहीं होता, लेकिन हुजूर मस्जिद नबवी के इमाम भी हैं, मस्जिद नबवी के खतीब भी हैं, और सुफ़ा के चबूतरे के मदरसे के मोहतमिम भी हैं, और सुफ़ा के चबूतरे वाले मदरसे के मुदर्रिस भी हैं। अकेले मुदर्रिस, तमाम असबाक और मज़ामीन हुजूर ने पढ़ाने, इबादात हुजूर ने पढ़ानी है, अखलाकियात हुजूर ने पढ़ानी है, मुआमलात हुजूर ने पढ़ाने हैं, मुआशरत हुजूर ने पढ़ानी है। अकेला मुदर्रिस, मोहतमिम भी, 5 वक्ती नमाजों का इमाम भी, मस्जिद नबवी का खतीब भी, इसके अलावा रियासत मदीना का हुक्मरान भी, और इसके अलावा 9 घरानों का कफील भी। यहां एक घराना हो तो जान के लाले पड़ जाते हैं, करबोगा में सेहरोजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि जी घर का क्या बनेगा। हुजूर 9 घरानों के कफील हैं, मस्जिद नबवी के इमाम हैं, खतीब हैं, सुफ़ा के मदरसे के मोहतमिम हैं, मुदर्रिस हैं, रियासत मदीना के हुक्मरान हैं। इसके बावजूद गलबे दीन के लिए, निफाज़े दीन के लिए हुजूर ने हर 48 दिनों में एक जंगी मुहिम फरमाई है। कितनी मेहनत फरमाई होगी आका ने, कभी सोचा है? कितने मसरूफ रहते होंगे मेरे और आपके पैगंबर, कभी हमने सोचा है? कभी गौर किया है? ये मुहिम किस दौर में थी? ये वो दौर है जिसमें ज़राए अबलाग भी कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप का ग्रुप बना लिया जाए और तमाम लश्कर को मैसेज कर दिया जाए जी फलां जगह पे आ जाना। ऐसा भी नहीं है कि लश्कर को F-16 तैयारे में बिठा दिया जाए और तबूक पहुंचा दिया जाए ना। ज़राए अबलाग भी नहीं, ज़राए आमदोरफ्त भी नहीं, और गलबे दीन के लिए 48 मुहिम्मात हैं हुजूर। अल्लाह ने इतनी मेहनत आका से कराई है। कभी मैं और आप तन्हाई में ये बात सोचें तो सही कि ये वो कौन नबी है जो इतनी मेहनत कर रहा है। ये तो वो पैगंबर है जो जमीन पे उंगली का इशारा करता है, अल्लाह आसमान के चांद के 2 टुकड़े करके उसे एक खिलौना बना देता है। ये तो वो नबी है जो उंगली का इशारा करता है, जमीन का दरख्त जमीन चीर कर नबी के कदमों में हाजिरी लगवाने आता है। ये वो अल्लाह का हबीब पैगंबर है जो उंगली का इशारा करता है, अबू जहल के हाथों में बंद पत्थर हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। ऐसे नबी से अल्लाह ने इतनी मेहनत क्यों कराई? सिर्फ मुझे और आपको यह पैगाम देने के लिए कि मेरे नबी की उम्मत के लोगों, मेरे निजाम को तमाम निजामों पे नाफिज करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मसरूफ रहना पड़ेगा, दीन को वक्त देना पड़ेगा। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह, निफाज़े दीन के लिए कोशिश करने में जो पहला फर्द है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहब्बत से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
फिर इसके बाद अल्लाह ने फरमाया हुजूर के बाद निफाज दीन की कोशिश करने वाले कौन है? फरमाया वल्लज़ीना माअहू, वो लोग जो मेरे मोहम्मद के साथी हैं। अब यहां पे आपके जहन में आएगा कि वल्लज़ीना माअहू से मुराद तो सहाबा है, क्योंकि हुजूर के साथी तो सहाबा थे, हुजूर की मईयत तो सहाबा को हासिल थी। याद रखिए यहां पे वल्लज़ीना माअहू में मईयत से मुराद मईयत आम है, चाहे वो मईयत ज़मानी हो जो सहाबा को हासिल थी, या मईयत एतकादी हो। हुजूर की मईयत एतकादी, हुजूर का एतकादी साथ, ये कयामत तक आने वाले हर उस मुसलमान को हासिल है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है। कयामत तक आने वाला हर वो इंसान जो अल्लाह की वहदानियत, हुजूर की खत्म नबूवत की गवाही देता है, वो एतकादी तौर पर हुजूर का साथी है, वल्लज़ीना माअहू में शामिल है। और ये वल्लज़ीना माअहू कौन है, इनकी निशानियां क्या हैं? अल्लाह ने आगे इनकी निशानियां बयान की। ऐसा नहीं है कि आप जबान से कह दें हाँ जी हमें हुजूर की मईयत एतकादी हासिल है, हम हुजूर के साथियों में से हैं, हम हुजूर के कलमा गो हैं। ना, अल्लाह ने निशानियां बताई हैं कि ये निशानियां होंगी तो वल्लज़ीना माअहू में शामिल होगे, अगर ये निशानियां नहीं है तो वल्लज़ीना माअहू का मिस्दाक नहीं हो। पहली निशानी फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। 3 निशानियां है भाई। कितनी निशानी? चार निशानियां हैं। 3 भी हो सकती हैं, इसको अगर मजीद वजाहत की जाए 4 है। पहली निशानी अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, जो लोग मोहम्मद की मईयत में होंगे कयामत तक आने वाले मुसलमान, उनकी पहली निशानी यह है कि वो काफरों पे सख्त गिर होंगे, कुफार पे सख्त होंगे। उनके दिल में कुफार के लिए कोई मोहब्बत या नरमी नहीं होगी, वो कुफरिया कल्चर को पसंद नहीं करेंगे, वो कुफरिया निजाम से नफरत करेंगे। यह हुजूर की मईयत का पहला असर है और हुजूर के साथी की पहली निशानी है। दूसरी निशानी बयान फरमाई रुहमाउ बैनहुम, जो हुजूर की मईयत वाला होगा, जो हुजूर के साथ वाला होगा, उसकी दूसरी निशानी यह है कि वो काफरों पे तो सख्त होगा लेकिन आपस में बड़ा रहमदिल होगा, उनके आपस में बड़ी मोहब्बतें होंगी। यहां पर एक सवाल है, अगर आप तवज्जो फरमाए तो मैं वो सवाल आपके सामने रखूं कि हुजूर तो है रहमतल लिल आलमीन, बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ पैगंबर, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। जब हुजूर खुद रहमतल लिल आलमीन है तो हुजूर की मईयत का जो असर आया उम्मत में, तो पहले रहमत आनी चाहिए थी ना, पहले रुहमाउ बैनहुम होना चाहिए था, बाद में अशिद्दाउ अलल कुफार होना चाहिए था। लेकिन कुरान की तरतीब अलग है कि अल्लाह ने जब हुजूर की मईयत के असरात बयान फरमाए तो अशिद्दाउ अलल कुफार को पहले रखा, रुहमाउ बैनहुम को बाद में रखा, कुफार पर सख्ती को पहले रखा, आपस में मेहरबानी को बाद में रखा। इसकी वजह क्या है? कुरान का उस्लूब ये वाज़ेह बताता है कि मुसलमानों के आपस में मोहब्बत उसी वक्त हो सकती है जब पहले इनके दिल में कुफार पर सख्ती आएगी। कुफार पर सख्त होंगे तो आपस में रहमदिल होंगे। अगर ये कुफार पर सख्त नहीं है, इनको कुफार का कल्चर बड़ा पसंद है, इनको कुफार की तहजीब बड़ी अच्छी लगती है, इनको काफरों वाला हुलिया बड़ा पसंद है, कुफार जैसा चेहरा बनाना, उन जैसे बाल बनाना, उन जैसा लिबास पहनना इनको बड़ा मरगूब है, तो अल्लाह इनकी आपस की मोहब्बतों को छीन लेगा। फिर ये आपस में रहमदिल नहीं होंगे, फिर ये मामूली मामूली फुरूई मसाइल पे एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ेंगे, एक दूसरे से नफरत करेंगे, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ेंगे, एक दूसरे को काफिर कहेंगे। वजह क्या है? अशिद्दाउ अलल कुफार इनके दिल में नहीं है। जब अशिद्दाउ अलल कुफार नहीं है तो अल्लाह ने रुहमाउ बैनहुम को सल्ब फरमा दिया। अगर रुहमाउ बैनहुम पैदा करना है, अगर आपस में मोहब्बत और रहमदिली पैदा करनी है तो कुफार पे सख्ती इख्तियार करनी पड़ेगी, कुफरिया निजाम से नफरत करनी पड़ेगी। और हजरात सहाबा इस बात का अमली नमूना थे। मैं एक मिसाल आपको देता हूं।
इस उम्मत के सरखैल अफजल उन्नास बाद अल अंबिया यारे गारे पैगंबर सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम का मतलब समझा रहा हूं। हजरत अबू बकर के उसवा से समझा रहा हूं। उनके फर्जंद हैं अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर। ये गज़वे बदर में मुसलमान नहीं थे, कुफार के लश्कर में शामिल थे। मुसलमानों से लड़ने के लिए आए अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर। बाद में मुसलमान हो गए, जलीलुल कदर सहाबा में इनका शुमार होता है। जब बाद में कभी मुसलमान हुए तो एक मर्तबा अपने अब्बा जान हजरत अबू बकर को अजराह तफन्नुन कह दिया कि अब्बा जान, बदर में आप मेरी तलवार की जद में आए थे, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। सिद्दीक अकबर का जवाब सुनिए, आपको अशिद्दाउ अलल कुफार का माना समझ। अबू बकर ने कहा कि मेरे बच्चे, तूने मुझे बाप समझ के छोड़ दिया था, लेकिन कसम है उस जात की जिसके कब्जे में अबू बकर की जान है, अगर तू मेरी तलवार के जद में आता, मैं तुझे अपना बेटा समझ के कभी माफ ना करता, क्योंकि तू कुफार की तरफ से लड़ने आया था और मैं मोहम्मद के दीन के निजाम के गलबे के लिए लड़ने के लिए आया था, हुजूर के दीन के निफाज के लिए। अगर मेरा लख्ते जिगर ही सामने क्यों ना आ जाए, मैं खूनी रिश्ते की परवाह नहीं करूंगा, मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। ये अशिद्दाउ अलल कुफार है। और रुहमाउ बैनहुम क्या है कि हबशे का गुलाम है, रंग का काला है, जिस्म का लागिर है, नाम बिलाल बिन रबाह है। हजरत अबू बकर के साथ करने मुंह मांगी कीमत देकर बिलाल को खरीद के आजाद करा दिया। ये रुहमाउ बैनहुम है। हजरत अबू बकर के वालिद ने एक मर्तबा कहा था कि अबू बकर क्या करते हो, अगर गुलाम खरीदने भी हैं तो तगड़े तगड़े खरीदो ना, जो तुम्हारे काम भी आए। जमाने जाहिलियत में रिवाज था कि जो गुलाम अगर कोई खरीद के आजाद कर देता तो उस गुलाम की विला और उसकी विरासत उसी को मिलती थी बाद। तो हजरत अबू बकर के वालिद ने कहा कि मेरे बच्चे, अगर गुलाम लेने भी हैं तो तगड़े लो, जिनकी विला भी तुम्हें मिले, जिनकी विरासत भी तुम्हें मिले, जो तुम्हारे काम भी आए। सिद्दीक अकबर ने कहा कि अब्बा जान, अपने लिए खरीदता तो तगड़े खरीदते, मैं जिस रब की रजा के लिए खरीद रहा हूं उसे यही पसंद है, उसे बिलाल पसंद है, उसे आमिर पसंद है। तो हजरात सहाबा अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम का अमली नमूना है। तीसरी निशानी अल्लाह ने जो बयान फरमाई वल्लज़ीना माअहू की, वो है तराहुम रुक्अन सुज्जदा, तराहुम रुक्अन सुज्जदा। वो लोग जो दीन को नाफिज करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन लोगों से निफाज दीन का काम लेगा, उन लोगों की तीसरी निशानी ये है, मैं अर्ज कर देता हूं कि वो खानकाही लोग होंगे। वो कौन से लोग होंगे? सूफी होंगे, खानकाहों में रहने वाले होंगे। क्या मतलब? तराहुम रुक्अन सुज्जदा, आप या तो उनको रकू की हालत में देखेंगे या सजदे की हालत में देखेंगे। तहज्जुद से शुरू होंगे, फजर की नमाज, इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज, ज़ुहर की नमाज, सलातु तस्बीह की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, अव्वाबीन की नमाज, इशा की नमाज, फिर तहज्जुद की नमाज। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, ऐ पैगंबर, वो आपको या तो रकू की हालत में मिलेंगे या सजदे की हालत में। यह तीसरी निशानी। और चौथी अलामत जिनसे अल्लाह निफाज दीन का काम लेगा, वो कौन होंगे? वो ये काम क्यों करेंगे? यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। क्या उनके दिल में रिया होगा? क्या उनके दिल में दुनियावी मफादात होंगे? फरमाया नहीं, वो काफरों पे सख्त होंगे, आपस में रहमदिल होंगे, रकू और सजदे में रहने वाले होंगे, सिर्फ इस वजह से कि यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह की रजा और अल्लाह की खुशनुदी चाहते हो, उनके दिल में इखलास होगा। तो अगर ये चार बातें मेरे और आपके अंदर पैदा हो जाए, कुफार पर सख्ती हो, आपस में मेहरबानी हो, इबादात में कसरत हो। आज ये अलमिया है जो थोड़ा सा दीन का काम करता है, तहरीकों में जाता है। असरारुल उरूज में हमारे हजरत मुफ्ती सैयद मुख्तारुद्दीन शाहजाद दामत फयूज़ुहुम ने ये लिखा है कि जो थोड़ा सा भी दीन के काम में मशगूल होता है तो फिर वो समझता है जी मैं तो दीन का बड़ा काम कर रहा हूं, मेरे जिम्मे मैं क्यों नवाफिल पढ़ूं, मैं तो पहले ही दीन की बड़ी खिदमत कर रहा हूं ना, मैं तहज्जुद क्यों पढ़ूं, मैं तो दीन का बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, मेरा तो सोना भी इबादत है। रुस्तम ईरान, जब उसके मुकाबले में सहाबा की फौजें गई ना, तो रुस्तम ईरान ने 2 जासूस भेजे थे सहाबा के लश्कर में। उसने कहा जरा देख के आओ ये पागल कैसे हैं, मैं ईरान की सुपर पावर हूं, रुस्तम ईरान हूं,
یہ کس کے بھروسے پہ مجھ سے لڑنے کے لیے آ گئے؟ پتہ تو کرو یہ ہے کون؟ تو رستم کے جاسوس جب واپس آئے تو انہوں نے حضرات صحابہ کا تعارف 2 لفظوں میں کرایا تھا، صرف 2 لفظوں میں۔ انہوں نے کہا رستم کو کہ رستم، یہ ایسے لوگ ہیں رکبانم بالنہار ورہبانم باللیل، یہ دن کو شاہ سوار بن جاتے ہیں، تلواریں نکال لیتے ہیں، اور رات کو راہبوں کی طرح مسلح پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج المیہ یہ ہے کہ جو دین کے کاموں میں آتا ہے وہ نوافل چھوڑ دیتا ہے، وہ معمولات چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں میں دین کا بڑا کام کر رہا ہوں۔ نہ، تراہم رکعان سجدہ، رکوع میں رہے گا، سجدے میں رہے گا، اللہ کی رضا کے لیے رہے گا، اور پھر ہوگا کیا؟ اللہ دے گا کیا؟ آخری بات ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جن کے دل کے اندر کفار پر سختی آ گئی، آپس میں رحم دلی آ گئی، اور رکوع اور سجدے کی عادت بن گئی، اور اخلاص دل میں پیدا ہو گیا، تو ہوگا کیا؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ فرماتا ہے میں ایسے لوگوں کے چہروں کو سجدوں کے نور سے بھر دوں گا، ان کے ماتھوں کو دیکھ کے لگے گا، ان کے چہروں کو دیکھ کے لگے گا، ان کے خد و خال کو دیکھ کے لگے گا کہ ان کے جسم کے رگ و ریشے میں اللہ کی عبادت کا نور بہہ رہا ہے۔ تو بھائیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام دیا وہ دین کا نفاذ، اور اللہ رب العزت نے دین کا نفاذ جن لوگوں سے لینا ہے ان کی یہ نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔